آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے محسن کا تاریخ ساز اقدام 10,000 طلباء کو بلا سود الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان۔ بے روزگاروں کو 10,000 الیکٹرک رکشے ملیں گے۔ سرکاری ملازمین، خواتین اور اسپیشل افراد کے لیے 2,000 بائکس کا کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ سرکاری محکمے آئندہ صرف الیکٹرک بائکس خریدیں گے۔ پنجاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا بھی باقاعدہ آغاز۔ محسن نقوی نے سی او سازگار کمپنی اسد حمید کو پہلا لائسنس دیا۔ الیکٹرک موٹر بائکس، رکشہ اور گاڑیوں کی نمائش دیکھی۔ رکشے میں بیٹھے چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین، امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنس، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور سربراہ پنجاب بینک ظفر مسعود ہمراہ تھے۔ شہریوں کو بلا سود الیکٹرک موٹر بائکس اور رکشوں کی فراہمی سے متعلق فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین، امریکی قونصل جنرل کرسٹن کے نے باقاعدہ شرکت کی۔ وزراء احسن تنویر، عامر میر، ابراہیم حسن مراد، بلال افضل شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریب کے آغاز سے قبل الیکٹرک موٹر بائکس اور رکشوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے بائکس اور رکشے دینے کے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو 10,000 الیکٹرک بائکس بلا سود آسان شرائط پر دی جائیں گی۔ اسپیشل افراد کو بلا سود 2,000 الیکٹرک 3 ویلر بائکس بھی دیں گے۔ سرکاری ملازمین کو 2,000 الیکٹرک بائکس دی جائیں گی، جبکہ سرکاری اور نجی ملازمت پیشہ خواتین کو بھی 2,000 الیکٹرک بائکس بلا سود ملیں گی۔ 2,000 موٹر بائک الیکٹرک فیمیلز کے لیے، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، وہ ہمیں شروع کرنی پڑیں گی، تو یہ 6,000 یہ ہو گئیں گے۔ ایک اور چیز، پنجاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے چنچی رکشے کے رجسٹریشن پروگرام کا افتتاح کیا۔ سازگار کمپنی کے سی او کو پہلا لائسنس دیا۔ وزیر اعلیٰ نے چنچی رکشہ باڈی کے سٹینڈرڈز کا باقاعدہ اعلان کیا، جبکہ 10,000 الیکٹرک رکشے پنجاب کے تعاون سے بلا سود دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر فیول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی لگا دی ہے اور سرکاری محکمے آئندہ صرف الیکٹرک بائک ہی خرید سکیں گے۔ ایک اور چیز، 10,000 ای رکشاز انٹرسٹ فری امیڈیٹلی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ گورنمنٹ آف پنجاب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک نہیں خریدے گی سوائے الیکٹرک بائک کے۔ سی او سازگار اسد حمید نے کہا کہ یہ وہ قدم ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ذاتی دلچسپی سے اٹھایا گیا اور اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ محسن نقوی صاحب، سر اٹ از یور ایفرٹ اینڈ آپ کی سوچ اور سمجھ، سر یہ 3 سال سے ان کو لائسنس نہیں مل رہا تھا۔ آئی ایم گریٹفل، تھینک یو ویری مچ۔ تقریب میں چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، بینک آف پنجاب کے سربراہ ظفر مسعود اور مختلف کمپنیوں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الیکٹرک موٹر بائکس، رکشہ اور گاڑیوں کی نمائش بھی دیکھی، رکشے میں سواری کی اور معیار کو سراہا۔ علی راہ میں سٹی 42۔ عوام کی خدمت کا مشن تیز۔ وزیر اعلیٰ کے پی آئی سی اور سروسز ہسپتال کے ہنگامی دورے۔ 3 گھنٹے تک پی آئی سی کی نئی ایمرجنسی اور سروسز ہسپتال کے اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ کیا، جبکہ پی آئی سی کی نئی ایمرجنسی میں ٹائلز کی صفائی نہ ہونے پر ناراضی کا اظہار۔ انتظامیہ کو مینٹیننس پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایات۔ 31 جنوری سے قبل گراؤنڈ فلور بھی اپ گریڈ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی خیریت دریافت کی، علاج معالجے کی سہولیات کا پوچھا۔ ڈاکٹر صحیح طرح دیکھ رہے ہیں، صحیح طرح دیکھ رہے ہیں، خرچہ باہروں تو نہیں آیا؟ ادھر 3 دن سے تو دوائی بازار سے تو نہیں لی، سارا یہیں سے مل رہا ہے۔ محسن نقوی نے پی آئی سی اور سروسز ہسپتال کا دورہ کیا۔ سیکٹری تعمیرات و مواصلات نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے 3 گھنٹے تک نئی ایمرجنسی اور سروسز ہسپتال کے اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ایمرجنسی میں ٹائلز کی صفائی نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابھی ٹائم پیریڈ میں نہیں آتے، ایپیسوڈ میں صاف کرتا ہوں اور کوئی طریقہ نہیں، صرف اور صرف اس کو اور کوئی طریقہ نہیں۔ کمشنر کو مستقل صفائی کرانے کے لیے انتظامات کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران ٹائلز کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے سروسز ہسپتال کی عمارت کے فرنٹ کا بھی معائنہ کیا، معیاری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے 31 جنوری سے قبل گراؤنڈ فلور کی اپ گریڈیشن مکمل کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس پرانی فیس پر ہی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرائیونگ لائسنس کی نئی فیس کا اطلاق مؤخر کر دیا۔ ڈرائیونگ لائسنس فیس میں اضافے کا اطلاق 16 جنوری سے ہوگا۔
वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों के मसाइल सुने और ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर का नोटिस लिया। शहरियों ने तरक्याती कामों की तारीफ की और मोहसिन नकवी के हक में नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहरियों को एक और खुशखबरी सुना दी। ड्राइविंग लाइसेंस की नई फीस का इत्तलाक 16 जनवरी से होगा। लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा किया। वज़ीर आला ने शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए, ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर की शिकायत का फौरी नोटिस लिया और कज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए 8 सेंटर कायम करने का ऐलान भी किया। एक दिन ठहरने में मसला इनका नंबर 380 को भेजो, आपको कल को रब्ता करें। मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही हल के लिए अहकामात जारी किए। शहरियों ने सूबे में तरक्याती कामों पर वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहद सराहा। शहरियों ने नारे बुलंद किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को मजीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से फौरी हिदायत दी। नाहम और दहम जमात का एक पेपर कम करने का फैसला किया गया है। अब इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान का नाहम और दहम जमात में अलग अलग पेपर नहीं होगा। बोर्ड कमेटी के चेयरमैन के फैसले के मुताबिक अब इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान का नहम और दहम जमात में अलग अलग पेपर नहीं होगा। नहम जमात में इस्लामियात का 100 नंबर का पर्चा होगा। दहम जमात में मुतालिया पाकिस्तान का 100 नंबर का इम्तिहान होगा। फैसले का इतलाक 2025 में 9वीं जमात से होगा। कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर तालीमी बोर्ड ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को मरासला भिजवा दिया। आइंदा साल से मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात की किताबें नए फैसले के मुताबिक तैयार की जाएंगी। निगरान हुकूमत की सेहत के शोबा पर गहरी नज़र। टीचिंग हस्पतालों में मशीनरी को फॉल रखने का निज़ाम राइज होगा। लिफ्ट्स मशीनरी को ऑपरेशनल रखना भी हस्पतालों की रिवैम्पिंग का हिस्सा होगा। हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। टीचिंग हस्पतालों में आए रोज मशीनरी आलात की खराबी का दरीना मसला हल करने का फैसला किया गया है। लिफ्ट्स मशीनरी को ऑपरेशनल रखना भी हस्पतालों की रीवैम्पिंग का हिस्सा होगा। लिफ्ट्स की तनसीब और देखभाल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। मंसूबे के तहत लिफ्ट्स और मशीनरी समेत तिब्बी आलात की लागबुक मुरतब होगी और मियाद पूरी करने वाली लिफ्ट्स मशीनरी को तब्दील कर दिया जाएगा। शहर की होलसेल मंडी और परचून मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। चावल, हल्दी, जीरा समेत दीगर अशिया के नर्ख बढ़ गए हैं। होलसेल मंडी में दर्जा दोम क्वालिटी के चावल 20 से 30 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जिसे परचून में चावल 320 से 350 रुपए तक फरोख्त होने लगे। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों का सर्फ मजीद 10 रुपए महंगा करके 630 रुपए का कर दिया गया। 1 किलो खुली चाय की पत्ती 50 रुपए इजाफे के साथ 1630 रुपए की हो गई है। 1 पाव हल्दी 50 रुपए और 1 किलो जीरा 100 रुपए महंगा हुआ है। जीरा 1200 से 1300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत भी बरकरार है। शहरी मजबूरन महंगे दामों ओपन मार्केट से दालें खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से ओपन मार्केट में महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नई आबादी कॉलोनी गड़ी शाहू और शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीन गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का सुई गैस की फराहमी का मुतालबा। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। नई आबादी कॉलोनी गड़ी शाहू के मकीनों ने गैस की अदम फराहमी पर एहतजाज करते हुए हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था गैस न होने के बाइस हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं और बिल हजारों में आ रहे हैं। हमारी हुकूमत और इंतजामिया से इल्तिजा है गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कभी भी नहीं आती गैस, न गर्मियों में न सर्दियों में। हम चूल्हा जला रहे हैं, गत्ते जला रहे हैं, कागज मार के हांडी बना रहे हैं। शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीन भी सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। शाहजमाल कच्ची आबादी के रिहायशियों का कहना है इलाके में सुई गैस नहीं आ रही, लकड़ी और सिलेंडर की महंगी गैस इस्तेमाल करके गुजारा कर रहे हैं। सुई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है मगर घरों में गैस आ नहीं रही। गैस का बहुत मसला है। बाजार से जो है ना हम सिलेंडर भरवा रहे हैं वो हमें महंगी पड़ती है, वो भी जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है। इधर अनारकली धोबी घाट में गुज़िश्ता 1 साल से गैस गायब। सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और जायद बिलों ने इलाके में रहना नामुमकिन कर दिया। रिहायशियों के मुताबिक गुज़िश्ता साल रमजान से अब तक चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुज़िश्ता रमजान हर दिन रोजा रखकर गुजारा करना पड़ता था। हमारी गैस ही नहीं आ रही, अब सिलेंडर भर रहे हैं, वो भी 500 का सिलेंडर, और गैस इतना ज्यादा आ रहा है कि कभी 5000 कभी 3000
कभी 2000 है, इससे नीचे कम नहीं आ रहा। सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरियों का कहना है गैस ना होने के बायस महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में रोज ब रोज बाहर का खाना कुव्वत खरीद से बाहर है। लेस्को ने जल्द खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने मुख्तलिफ सर्कल्स को 30,000 सिंगल फेज मीटर्स जारी करके बिलिंग, MC और रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ने मुख्तलिफ सर्कल्स को 30,000 से जायद सिंगल फेज मीटर जारी कर दिए। जराये ने बताया कि लेस्को में मजमूई तौर पर 1,10,000 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव करार दिया गया है। लेस्को ने मुतलका दफातर को मीटर्स जारी करके बिलिंग और MCO का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तमाम दफातर को रवा माह की बिलिंग से कबल खराब सिंगल फेज मीटर्स तब्दील करने की हिदायत की गई है। वाज़े रहे कि खराब होने वाले मीटर्स पर सार्फिन को औसत बिल्स भिजवाए जा रहे हैं। इस तरह सर्दियों में सार्फिन मौसम गर्मा के मुताबिक इजाफी यूनिट्स के बिल्स देने पर मजबूर हैं। लेस्को को 2 साल से मीटर्स की किल्लत का सामना है। मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी की गई है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर ही मरीजों को मेडिसिन इस्तेमाल करवाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस ने मेडिसिन खरीदने में 7 माह ताखीर के बाद अस्पतालों को बकिया 75% अद्वियात की खरीदारी का टास्क सौंपा था। अस्पतालों को डायरेक्ट खरीदारी के लिए 55 करोड़ और फिर 27 करोड़ जारी किए गए। जराये के मुताबिक हेड ऑफिस ने सिर्फ 25% अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से टेस्ट करवाई। जराये के मुताबिक अस्पताल की डायरेक्ट खरीदारी के बाईस 629 अद्वियात की ड्रग टेस्टिंग नहीं करवाई जा सकी, जिससे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के मरीजों की जानें खतरे में हैं। दोहरे मयार, दोहरे कानून और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इंतजामिया की पुरस्रार खामोशी बहुत से सवालात उठा रही है। माजी में नाअहल डायरेक्टर परचेज का सिर्फ तबादला किया गया, वो 26 दिसंबर को रिटायर हो गया। मौजूदा नाअहली ताखीर पर महकमा सोशल सिक्योरिटी ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं ला सका है। DC की जेर सदारत शहर के अहम शाहराहों की मरम्मत व बहाली के बरवक्त तकमील के हवाले से जायजा इजलास। DC लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहर में मजमूई तौर पर 414 तरक्याती मनसूबे जारी हैं। शहर की अहम शाहराहों की मरम्मत और बहाली की बरवक्त तकमील के हवाले से DC लाहौर राफिया हैदर ने दिन भर की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद ने जारी मरम्मत और बहाली के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। राफिया हैदर का कहना था शहर की 8 अहम शाहराहों पर 40% काम मुकम्मल किया जा चुका है। दीगर 63 शाहराहों की मुरम्मत का काम भी शुरू है। पैचवर्क की 299 स्कीमों पर काम जारी है। फुटपाथ की मुरम्मत की 44 स्कीमों का काम हो रहा है। तमाम मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर जोन में अफसरान का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। करशी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मोटापा एक जदीद तर्ज ज़िंदगी का डरावना ख्वाब के मौजू पर सेमिनार हुआ। तालिब इल्मों को मोटापे से महफूज रहने के हवाले से लेक्चर्स दिए गए। करशी यूनिवर्सिटी में मोटापा एक जदीद तर्ज जिंदगी का डरावना ख्वाब के मौजू पर सेमिनार का इनकाद किया गया। CEO MD हेल्थ सेंटर लाहौर डॉक्टर नसरीम इकबाल ने कहा, मोटापा एक बीमारी है, सेहत नहीं। नौजवान नस्ल ज्यादा शिकार हो रही है। रोजमर्रा जिंदगी में चिकनाई से भरपूर अशिया का इस्तेमाल कम करना होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमें बताई है, ख़ास तौर पे जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है इंटरनेशनली जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप देखें तो आपका जो नमाज है इट्स अ परफेक्ट लाइफस्टाइल। तो नमाज जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो इसको कायम करें, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी जब नमाज आप पढ़ने जाते हैं मस्जिद जाके, तो उसमें आपकी एक्टिविटी होती है, उसमें आप टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, और इसी तरह आपकी इमोशनल हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, आप लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेमिनार में हेड ऑफ क्यू टॉक्स डॉक्टर मिसबा इकबाल करशी समेत डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर्स ने कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखना सबकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शुरा की जानिब से सेमिनार के इनेकाद को खूब सराहा गया। मोटापा 100 बीमारियों का घर है, तो उनका सिंपल तरीका है मूव मोर ईट लेस एंड ईट राइट। और शुगर, रिफाइंड मैदा, हर चीज़ों तो जड़ा ना ते चीज़ों को मिक्स नहीं करना। तबे शरीर दे विच सिंपल हजूर पाक ने कहा है कि खजूर दे हिस्से का खाना है। Exchange of knowledge is always helpful. It promotes thinking, free thinking, and exchange of ideas, which lead to more ideas about various research projects, and also help in development of curriculum
for the students. मोटापे के साथ मुतअद्दिद अमराज भी सामने आते हैं, जिनमें ज़ियाबतीस, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर काबिल जिक्र है। मोटापे से महफूज रहने के लिए तर्ज जिंदगी को बेहतर करना होगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर बिजनेस इनोवेशन एंड रिसर्च सिम्पोजियम की तकरीब तालिबे इल्मों ने मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ पेश किए। यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर बिजनेस इन्वेंशन एंड रिसर्च सिम्पोजियम की तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ अंदाज में मुतअद्दिद बिजनेस आइडियाज को पेश किया। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, हमारी कैंपस के तलबा इंतहाई मेहनती हैं, इसलिए हमेशा इन्हें ऐसे मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीह रहती है। इसका बुनियादी मकसद है कि कैसे हम स्टूडेंट्स के अंदर जो रिसर्च की एक अहमियत है उसको उजागर कर सकते हैं, और नंबर 2 रियल टाइम जो बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कैसे ये जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिकल उनका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तकरीब में डायरेक्टर सिटी कैंपस डॉक्टर एहतशामुल हसन, डीन डॉक्टर सलमान मसूद, HOD अनस हसन, ऑर्गेनाइजर नुमान असलम समेत दीगर शरीक थे। आमतौर पर ये जो होती हैं पोस्ट ग्रेजुएट में आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। यंग लोग अभी नए नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये शुरू किया और पेपर लिखे हैं सारे, और उनके सुपरवाइजर बड़े अच्छे हैं, उनको गाइड करते रहे। लेकिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की जानिब से तरक्की करने के बेहतरीन मौके फराहम किए जाने के अमल को खूब सराहा। कैमरामैन असद के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42। आपको बताएं, मिनहाज यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट मुतारिफ करवा दिया गया, जबकि तुलबा एक बटन दबाकर अपनी पसंदीदा किताब तक रसाई हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तालीमी निजाम में जिद्दत। यूनिवर्सिटी तलबा की आसानी के लिए लाइब्रेरी में रोबोट ले आई। रोबोट तालिबे इल्मों की किताबों तक आसान रसाई में अहम किरदार अदा करने लगा है। VC मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर SM शहजाद ने रोबोट की परफॉर्मेंस पर रोशनी डाली। हाल ही में हमने अपनी रोबोटिक लाइब्रेरी स्टार्ट की है। इसमें ये कि स्टूडेंट्स आएंगे, अपने टैब के ऊपर आके वो टाइप करेंगे कि उनको कौन सी बुक चाहिए। रोबोट्स हैं जो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, वो जाएंगे पर्टिकुलर शेल्फ में, वहाँ से उनकी बुक लाएंगे और लाके स्टूडेंट को टेबल पर डिलीवर करेंगे। और जब स्टूडेंट वो इस्तेफादा हासिल कर लेगा उस किताब से, तो वापस उसी तरह रिपोर्ट वहाँ से उठाएगा बुक और जाके अपने रैक में रख देगा। डायरेक्टर लाइब्रेरीज आसिफ बिलाल बताते हैं कि रोबोट काम कैसे करता है। इसका जो कोर पर्पस है वो सिर्फ यही है कि एक तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुके हैं। ये जो स्टाफ है वो समटाइम बिजी हो जाता है, स्टक हो जाता है टू हैंडल देयर क्यूरीज। आपने किसी रिस्पेक्टिव शेल्फ तक जाना है तो इसके अंदर सारी शेल्फ लोकेशंस हैं, फिर इसके अंदर लिफ्ट तक आपको लेके जा सकता है, स्टेयरकेस तक लेके जा सकता है। तुलबा निजाम तालीम में जिद्दत के हवाले से यूनिवर्सिटी की काविशों को सराह रहे हैं। ये हमें बहुत फायदा देता है। पहले तो बुक्स हम खुद जाके सर्च करते थे, लेकिन इससे हमें खुद बुक्स तक ले जाता है जो हमें चाहिए होती है। हमारे लिए बहुत आसानी है। हमें बुक्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और जब से ये रोबोट बन गया है तो हमारे लिए बुक्स को ढूंढना इतना ईजी हो गया है कि हमारे सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ये उस शेल्फ तक ले जाता है जो भी हमें बुक चाहिए हो, जो भी बुक हमें रिक्वायर्ड हो। रोबोट की वजह से तुलबा की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ गई है। हर रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में हजारों किताबों से मुस्तफीद हो रहे हैं। यूं तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के दौर में काफी पीछे है, मगर इस तरह के रोबोट एक मुस्बत सफर के आगाज की आगाही करते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42।